Hey everyone, what's up? It's me Nabil Sadan. Sorry. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new videos. So right now, we are going to react on Conjuring 3 का first look. First look. ठीक है? बेसिकली कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. मार्वल यूनिवर्स के बाद जो के सेकंड यूनिवर्स है ना, जो मुझे अच्छा लगता है वो कॉन्जरिंग यूनिवर्स ही है. और मुझे यूनिवर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और सारी मैंने अपने दूसरे चैनल पे इसके लिए डिटेल वीडियोस भी बनाता रहता हूँ. तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. और ये एक मियाँ बीवी हैं और असल में जो भूत वगैरह पकड़ते थे उनकी रियल लाइफ से निकला हुआ यूनिवर्स है ये. यानी कि उनकी स्टोरीज को लेके कुछ ना कुछ अपना बीच में एड ऑन करके बनाया जाता है. यानी कि टोटली ट्रू स्टोरीज नहीं है लेकिन बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज है. यानी कि कुछ थोड़ा सा एस्पेक्ट्स ले लिए फिर उसमें. तो ये जो 3 बन रही है ना, मूवी बन रही है जो आ रही है, इसके बारे में मैंने देखा था कि जो इतना मुझे पता है, इनका एक केस था, डेविल मेक मी डू इट केस था ये इनका. उसमें होता है कि एक बंदा मर्डर कर देता है, बाद में जब उससे अदालत में पूछा जाता है क्यों किया, तो बोलता है कि मुझे मेरे अंदर कोई चीज आ गई थी जिसने ये करवाया, मैंने नहीं किया. उसने उर्दू में बताया था? नहीं, मैंने उर्दू में बताया. तो वो ये बोलता है, ठीक है, वो उर्दू में बताता तो कितना फनी हो जाता है. पूछे व्हाट डिड यू डू दिस, मेरे अंदर एक चीज आ गई. मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, हम नागिन है, हम नागिन है, हम नागिन है. ऐसे नहीं है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ हमें नेचुरल ब्यूटी दिए हैं. तो वो देर ना करते हुए देखते हैं. ये है, पता नहीं किस चैनल पे पोस्ट हुई है, मुझे ऐसे किया शूट किया है. 2 pieces only. बिकिनी शूट. अच्छा, ये वीडियो पता नहीं फिल्म सेलेक्ट ट्रेलर पे पोस्ट हुई है मेरे ख्याल से. और वीडियो का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. सब मिल जाएगा आपको. वीडियो है 2 मिनट 44 सेकंड्स की. 2 मिनट 44 सेकंड. 2 मिनट 41. 2 मिनट 42 सेकंड. ये तुमने एक दिन किया था, मैं उसकी कॉपी कर रहा हूँ. मुझे कॉपी कर रहा है. 2 मिनट 41 सेकंड की वीडियो. लॉबी में 2 मिनट 41 सेकंड की वीडियो है और सारे लिंक नीचे हैं. बेसिकली ट्रेलर नहीं है ये एक फर्स्ट लुक, यानी कि डायरेक्टर बात कर रहा होगा इस टाइप की कोई वीडियो, क्योंकि जो डिस्कशन हो सकता है. सो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब. लेट्स फर्दर अडू माइट रियली जंप इनटू द वीडियो. We know there are other stories to tell, but we've never felt the pressure to push them out there until we feel like there is a great story to tell and that we have something that again will be a worthy entrance to the Conjuring universe. I'd like you all to sit quietly and close your eyes. I really wanted Conjuring 3 to get away from the haunted house setup of the first 2 Conjuring films. It should be more on a whole different level, something that we've never explored before in the Conjuring world. We wanted to keep our new story grounded in the feel of Conjuring movies, but we wanted to make sure we were telling a brand new story. And we think the Arnie Johnson story was something that really deserved a much closer look. As I got to the bottom of the stairs and I went to open the door, I don't remember anything from that point. The next thing I know, I was in a jail cell. And I said, what's going on here? And they said, well, you're being charged for murder. I said, what are you talking about? The trial of Arnie Cheyenne Johnson. This was an internationally renowned case, which was the first time in the history of law in the United States that demonic possession was used as a reason for committing manslaughter. Do you think you'll be able to prove the existence of the devil in court? Truth doesn't require anyone to believe in it. You're in for a much different ride than you've been on in other Conjuring films. What's the point of a sequel if you can't outshine and outstory and out-heart the previous films? It just requires you to bring your A+ game. When I was working with Michael Shabs on La Llorona, I saw a filmmaker that really gets these kind of films. It's bittersweet for me to pass the baton on. And action! But it's good to get a fresh take on where we can take the Conjuring universe. We're offering something very special with these films, and I think that's one of the reasons people keep coming back. The final reason, of course, is that people love to be scared. I don't know that anybody has crafted or created better scare sequences than James Wan, David Sandberg, Gary Dauberman, Corin Hardy, John Leonetti, Michael Shabs. Guys, we're making ये Conjuring. सारे वो लोग हैं जो These are all ओरिजिनल people डायरेक्ट that किए really know what they're doing, and they do an incredible job crafting new and original scare sequences. That's really what people come back to see.
तो जैसा कि इन्होंने पुराने डायरेक्टर्स के नाम लिए हैं, सबने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है और कॉन्जरिंग यूनिवर्स मुझे वैसे बहुत यानी कि अच्छा लगता है और ये एक रियल केस के ऊपर बन रही, जैसे तुम मैंने पहले भी बताया था। तो बेसिकली होने वाला ये है कि एक बंदे ने थोड़ा सा उन्होंने उसने एक्टिंग भी करके दिखा दी है कि मैं कहीं और जा रहा था, फिर मेरी आंख खुली तो मैं जेल के सेल में था। मैंने पूछा कि यहाँ क्यों, तो उन्होंने बताया कि जी तुमने बंदे मारे हैं, तो मर्डर्स किए हैं तुमने। तो बेसिकली इस मूवी में ये होने वाला है कि इन मियाँ बीवी को साबित करना है कि भूत हैं कि नहीं है। तो ये ऑब्वियसली साबित तो हो नहीं सकता है, तो देखना पड़ेगा मूवी में होता क्या है और स्केयर सीक्वेंस कैसे होते हैं। मूवी के लिए मैं एक्साइटेड बहुत ज्यादा हूँ, जब से ये अनाउंस हुई है तब से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि इसके बाकी पार्ट कॉन्जरिंग 1, 2, फिर एनाबेल 1, 2, 3, फिर उसके बाद नन 1, फिर लायरोना 1, तो इस तरह आगे देखते हैं आगे जाके किस साइड पे बिल्डअप हो रहा है ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स। क्योंकि इसके बाद आई गेस मेरे ख्याल से 1-2 मूवीज और अनाउंस हुई जो मेरे दिमाग से भी निकल गई एकदम से, लेकिन काफी ज्यादा मूवीज आ रही हैं कॉन्जरिंग यूनिवर्स की। लेकिन मेन स्टोरी के साथ ये खत्म हो रही है, क्योंकि 3 पार्ट कॉन्जरिंग के बाद मेरे ख्याल से ये दोनों मियाँ बीवी के आगे केस शायद कम हो जाए, ये कैमियोज वगैरह होने लग जाएंगे इनके दूसरी मूवीज में, जैसे एनाबेल वेलकम होम या एनाबेल कम्स होम जो आई थी उसमें काफी बड़ा सीन थे, यानी कि काफी बड़े रोल थे इनके। बेसिकली देखी थी तुमने कम्स होम? कम्स होम नहीं, एनाबेल कम्स होम। हाँ देखिए ना, जिसमें ये अपने घर एनाबेल को लेके आते हैं और ये किसी केस को सॉल्व करने चल जाते हैं और पीछे इनके घर में बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं बेटी हाँ। बेटी, तो वो है। फिर उसके बाद नन 2 आ रही है मेरे ख्याल से, और एनाबेल का भी मे बी प्रोबेबली आगे पार्ट आएगा, क्योंकि एनाबेल कम होम्स में काफी ईस्टर एग्स से काफी और हॉन्टेड चीजों के बारे में दिखाया गया था, तो उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर आगे जो आ रहा है क्या नाम है उसका, कॉन्जरिंग 3 आ रही है, क्योंकि हर मूवी से ना और बहुत सारे आइडिया स्पॉन होते हैं। जैसे पिछली में क्रिकेट मैन का स्पॉन हुआ था, लेकिन उन्होंने वो शेल कर दिया है, उस टाइम में अनाउंस हो गया था क्रिकेट मैन की एक मूवी आ रही है, ये क्रिकेट मैन एक लैदा फ्रेंचाइज, लेकिन वो आई गेस उन्होंने शेल कर दिया आइडिया। और बाकी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जेम्स वॉन जो कि अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मूवी को, पार्ट 3 को, ये पहली 2 मूवीज के डायरेक्टर थे और इन्होंने एक और फ्रेंचाइज इसी तरह डायरेक्ट की है। मैं उसका एक बहुत बड़ा फैन हूँ, वो है, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, हीरो यही था उसमें भी, इंसीडियस। हाँ, वो मैंने देखी है। उसके पहले 2 पार्ट तो बहुत उमदा थे, बहुत ही ज्यादा उमदा थे। फनी थी वो, मतलब हॉरर थी पर फनी थी। हॉरर थी फनी थी, हॉरर फनी, हमें फनी कैसे थी वो, अच्छी थी वो। उसका जो सेकंड पार्ट जो उसको कवर अप कर रहा था ना, जो टाइम ट्रेवल और ये सारी चीजें और हॉरर में एक नया जॉनर मुझे लग रहा था, वो मुझे वो चीज बड़ी अच्छी लगी। पार्ट 3 और 4 इतने कोई वो अच्छे नहीं थे, यानी कि कंटिन्यू स्टोरी थी, लेकिन मेन जो मियाँ बीवी की कहानी थी पहले पार्ट में वो बहुत उम्दा थी, और वो पहले 2 पार्ट मुझे वैसे ही बहुत उम्दा लगते हैं, अच्छे लगते हैं। उसके बाद जेम्स बॉन्ड, पहले कहना था वो पहले 2 पार्ट मुझे बहुत आम लगते, नहीं उम्दा, वो मैं जबरदस्त कहने लगा फिर उम्दा हो गया वो। तो उसके बाद जो अभी जेम्स बॉन्ड ने लास्ट ईयर डायरेक्ट की थी एक्वामैन, जो डीसी की अच्छी फिल्म थी, मुझे इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी अच्छी होगी, लेकिन वो अच्छी फिल्म थी। देन उसके बाद एक और अभी कर्स ऑफ लायरोना ने जो डायरेक्टर थे वो डायरेक्ट कर रहे हैं ये मूवी, और जेम्स बॉन्ड प्रोड्यूसर की प्रोड्यूसर की चेयर पे हैं, यानी कि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पीछे से ऑर्डर देंगे कि ऐसे कर लो, लेकिन मेन जो हाथ में है ना लाइट जिसके, वो कर्स ऑफ लायरोना वाले डायरेक्टर हैं। और इसके बाद क्योंकि एट द टाइम मेरे ख्याल से जेम्स वॉन कुछ और डायरेक्ट कर रहे थे, कोई और मूवी डायरेक्ट कर रहे थे, और काफी यानी कि मैं एक्साइटेड हूँ। और वो इंसीडियस जो मूवीज है उनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और बेसिकली जेम्स वॉन का काम देखने में तब शुरू हुआ था जब मैंने इंसीडियस देखी थी। देन उन्होंने कॉन्जरिंग बनाई, कॉन्जरिंग अच्छी चल गई, फिर उसके बाद एनाबेल आई, फिर एनाबेल के बाद फिर कॉन्जरिंग आई, फिर एनाबेल 2 आई, फिर नन आई, फिर कॉन्जरिंग 2 आई, फिर उसके बाद एनाबेल 3 आ गई, फिर कर्स ऑफ लायरोना आ गई, अब आगे आ रही है। ये कर्स ऑफ लायरोना पहले आई थी मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं। कर्स ऑफ लायरोना के बारे में मुझे तब पता चला था मैं गया था देखने अवेंजर्स एंड गेम, तो उधर अवेंजर्स एंड गेम की एडवांस बुकिंग करवाने गया था जिस दिन मैं, तो उस दिन पोस्टर लगा हुआ था द कर्स ऑफ लायरोना फ्रॉम कॉन्जरिंग यूनिवर्स। ये मुझे ये मेरे नजर से चीज कैसे रह गई
ये मेरी नजर से चीज कैसे रह गई। फिर मैंने रिसर्च वगैरह की तो पता चला कि बेसिकली ये जो कर्स ऑफ ला llorona है ना, ये एक स्टैंड अलोन हॉरर मूवी थी, लेकिन इन्होंने एक छोटा सा कैमियो बीच में डाल दिया कि इनके साथ जुड़ जाए, कि ये इनके यूनिवर्स में आ जाए, आगे अगर वो कुछ चाहें तो वो कर सके। ये आइडियाज मुझे अच्छे लगते हैं कि मूवी अगर आप कुछ और भी बना रहे हो, एक छोटा सा एक बंदा पीछे से गुजर जाए, उससे मूवी अगर आपके यूनिवर्स में आ सकती है तो कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखो ना, वो मूवी ने इतनी कमाई नहीं करनी थी, वो मूवी इतनी को खास भी नहीं थी कर्स ऑफ ला llorona, लेकिन क्योंकि वो कॉन्जरिंग यूनिवर्स से रिलेट कर रही थी तो वो उसने बिजनेस बेहतर ही हुआ उसका। तो एक यूनिवर्स जो बिल्डअप करना होता है ना, उससे चीजें बेहतर ही होती हैं। अब जैसे देखा जाए, एक और यूनिवर्स है डीसी का नहीं, यूनिवर्सल का डार्क यूनिवर्स, वो बहुत जल्दी हार मान गए, लेकिन अगर वो चलता रहता तो मैं उससे भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी। उनकी पहली मूवी बेसिकली जो थी वो थी ड्रैकुला दी अनटोल्ड स्टोरी, लेकिन वो चली नहीं। उन्होंने बाद में उसको कह दिया कि जी पहली मूवी है हमारी मम्मी, वो भी नहीं चली तो उन्होंने शैली कर दिया आइडिया। लेकिन अगर वो एक दो मूवीज और बनाते तो आगे बिल्डअप होकर चीजें चलने लग जाती हैं। तो ये एक चीज, इन्होंने दो ही यूनिवर्स अभी कामयाब चल रहे हैं, एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, दूसरा कॉन्जरिंग यूनिवर्स। उसके बाद डीसी यूनिवर्स उठ रहा है, उसकी जो लास्ट मूवी आई थी जो मैंने बताया है एक्वामैन चल गई है। उसके बाद अभी वंडर वुमन 2 आ रही है, फिर उसके बाद HBO मैक्स पे आ रही है जुरासिक वर्ल्ड कहने लगा था, जस्टिस लीग का डायरेक्टर्स कट जो आ रहा है, जैसे कह सकते हैं उसको जेम्स वॉन तो ये है, जैक स्नाइडर्स कट आ रहा है डीसी के ऊपर, डीसी कह रहा हूँ HBO मैक्स ऊपर, उसके लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी तुम थोड़ा सा बता दो, जो तुम्हें क्या फील आया इसको देख के। जी मैं बता मुझे भी मौका मिला जी, वो मेहरबानी आपकी, आपने हमें भी इस काबिल समझा, हम आपके शुक्रगुजार है। सबसे पहले जी तो मैं बताऊंगी कि ये जो हॉरर मूवी, इस बात से मैं पर्दाफाश करनी है, ये मेरे को बहुत फनी लगती है। मेरे को इसको डर नहीं लगता, इनको देख के मेरे को हंसी छूट जाती है, तो मैं एक्साइटेड हूँ फनी मूवी देखने के लिए। मैं तो भाई डरता तो हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बेसिकली मैं सही में बताऊँ, मेरा फ्लोर पूरा अकेला खाली है। क्योंकि मैं डरती इसलिए मैं 7-10 बंदे बिठाती हूँ। मैं बताता हूँ, मेरा पूरा फ्लोर मेरे पास है, ठीक है, और ये छोटा फ्लोर नहीं है, अच्छा खासा बड़ा फ्लोर है। मैं अपनी फैमिली के 10 बंदे साथ बिठाती हूँ कि नहीं यहाँ बैठे, यहाँ मामा बैठे, यहाँ पापा बैठे, और फिर उसके बाद मैं कहती हूँ जब तक मैं नहीं सोऊंगी आपने भी नहीं ये फान बन गई हो तुम। जब तक मैं पापा मैं अब सोने लगा हूँ, जब तक मैं नहीं सोऊंगा आपने नहीं सोना, मुझे डर लग रहा है। वो चाचू का छोटा बेटा है, वो सारा दिन हॉरर चीजें देखता है और वहां में सोने टाइम बोलता है कि अपने रूम में बुला के कि जब तक मैं सोऊंगा नहीं आप लोग इधर बैठे रहो। अच्छा खैर, ये जो मोस्टली क्लिप्स दिखा रहे थे वो पुरानी मूवीज की थी, लेकिन बीच में कुछ नए स्नीक पिक्स भी थे और मैं काफी एक्साइटेड हूँ, अगले साल आ रही। बेसिकली ये मूवी इस साल आनी थी, कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई, तो अभी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और क्योंकि अभी वैसे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अभी शूटिंग काफी फिल्मों की दोबारा से शुरू हो चुकी हुई है, जैसे कि स्पाइडरमैन की शूटिंग स्टार्ट है, डॉक्टर स्ट्रेंज की शूटिंग स्टार्ट है, थॉर लव एंड थंडर की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आगे क्या नाम है, ऑस्कर आइजैक कंफर्म हो चुके हैं फॉर डिज्नी प्लस की डार्क नाइट नहीं, मून नाइट कैरेक्टर के लिए कंफर्म हो चुके हुए हैं वो, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। डिज्नी प्लस का कंटेंट भी आ रहा है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 9 नवंबर को आ रही है क्या नाम है उसका, पहला एपिसोड और लॉन्च हो रहा है सीजन 2 मैंडलोरियन 1 का। की भी तो मूवी आ रही है। ब्लैक विडो की मूवी तो बनी पड़ी है, प्रॉपर रेडी है। ब्लैक विडो बनी पड़ी है, इटर्नल पूरी बनी पड़ी है, और बेपनाह मूवीज बनी पड़ी हैं जो कि कोरोना की वजह से रुकी हुई है। तो खैर ये था हमारा रिएक्शन ऑन कॉन्जरिंग सीजन 2 नहीं, कॉन्जरिंग पार्ट 3 के फर्स्ट लुक के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। डिस्कशन नहीं, लुक था बीच में, कुछ स्नीक पिक्स तो थे, लेकिन लुक नहीं कह सकते, पर लुक भी कह सकते हैं, हमें एक्टर दिख रहे हैं कौन। हाँ, सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक वाचिंग आवर वीडियो, प्लीज गिव अस अ बिग फैट thumbs up. If you want to suggest something or you have any question, please write that in comment section below. You can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, like basically I'm everywhere. Simply search NABSS and you will find me. You can also find her on YouTube, Mariam Space Shahzad, MARIAM Space SHAHZAD. And you can also click here to subscribe our YouTube channels. After subscribing our YouTube channels, please ring the bell for notification. It can help you to stay active on our YouTube channel. You can also click here to watch our other videos. Stay blessed, stay happy, enjoy your life. Bye, take care, peace.